اور پھر اقبال کا ولیمہ بھی گزر ہی گیا، سب مہمان بھی رخصت ہو کر جا چکے تھے، اور اب کے سب اسے وقار کی بہو اور معاذ کی بیوی کی حیثیت سے جان کر گئے تھے۔ ولیمے میں بہت سے لوگوں نے خوش دلی سے اسے ساتھ لگایا، بہت سو نے معنی خیزی سے سر بھی جھٹکا تھا، اور کچھ نے تو بے حد کڑوے جملے بھی کہے تھے، لیکن ان سب باتوں سے اب فرق ہی کیا پڑنا تھا، جو ہونا تھا وہ تو ویسے بھی ہو چکا تھا۔ اگلے دن سب اپنی نارمل روٹین پر واپس آ چکے تھے، ہاں البتہ عابد اور رامین کا رویہ رابعہ سے کھچا کھچا سا تھا۔ اس نے بھی ان پر زور دینا مناسب نہ سمجھا، خاموشی سے بس اس نے ان کے گزر جانے کا انتظار کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنا تو خیر اب کے سب گھر والوں ہی نے ترک کر دیا تھا، کیونکہ رابیل اور عابد دونوں ہی ایک دوسرے سے چھپ رہے تھے، کوئی بھی روبرو بات کرنے کو تیار نہ تھا۔ آہستہ آہستہ ردا اور شیزا بھی نارمل ہو کر کالج جانے لگیں، اس کی یونی شروع ہونے میں وقت تھا تو اس نے خود کو مدرسہ میں مصروف کر لیا، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ رامین نے خاموشی سے کچن سنبھال لیا اور ایک بار پھر سے سب نارمل ہو گیا، لیکن کچھ تھا جو نارمل ہو جانے کے بعد بھی بے حد ایب نارمل تھا۔ جب سے اس کا نکاح معاذ کے ساتھ ہوا تھا تب سے وہ ایک بار بھی اس سے ملنے دوبارہ نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آئے، گھر والوں کو یقین دلائے کہ اس نے جو بھی کیا اس میں اس کی خوشی شامل تھی۔ وہ اب دوبارہ سے سوالیہ نشان نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن معاذ نہیں آیا، نہ ہی تایا کی جانب سے کسی قسم کی خیر خبر کا جواب آیا۔ سب خاموش رہے۔ یہاں سے رابطہ کرنے کا مطلب تھا اپنے آپ کو ہلکا کرنا، جو عابد کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ایک بیٹی کے باپ تھے، وہ اس بیٹی کو مزید ارزاں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس نے بھی کوئی رد عمل دینے کے بجائے خاموش رہ کر قبول کرنا ضروری سمجھا۔ لیکن پھر جب اس نے اس رات رامین اور عابد کی باتیں سنی تو وہ سن ہو کر رہ گئی۔ اس رات وہ ان کے کمرے میں بہت دنوں بعد چائے دینے جا رہی تھی، اپنی اور ان کی ناراضگی کو ختم کرنے جا رہی تھی کہ ان کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے آتی باتوں کی آواز پر اس کے قدم ساکت ہو کر رہ گئے۔ سائمہ کا فون آیا تھا مجھے آج آفس میں۔ اس کا دروازہ کھولتا ہاتھ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا کہا انہوں نے؟ رامین بھی ان کے لہجے پر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ رابیل کو طلاق دلوا دو، اور ٹرے اس کے ہاتھ میں پل بھر کو لرز کر رہ گئی تھی۔ دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ کیا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کہیں ان کا؟ پہلے ہماری عزت کا تماشا بنا کر رکھ دیا، اور اب ہمیں ایک بار پھر سے ذلیل کرنے کا موقع تلاش کر رہی ہیں وہ۔ کم از کم اب تو ہمیں چین سے جینے دیں وہ۔ رامین کے لہجے کی نمی آخر میں جیسے رابیل کے اندر تک اتر گئی تھی۔ اپنے ماں باپ کو جانے وہ اور کتنا پریشان کرنے والی تھی، سب اس کی وجہ سے کتنا ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ اور اب یہ پھپھو، آخر انہیں مسئلہ تھا ہی کیا؟ وہ بے دلی سے پلٹنے ہی لگی تھی، لیکن عابد کی اگلی بات پر اسے لگا جیسے کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو۔ بھائی صاحب نے اپنے بیٹے کا نکاح ہماری لڑکی سے کر تو دیا ہے رامین، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکا اس رشتے کو لے کر راضی نہیں ہے۔ دیکھو نا، جب سے نکاح ہوا ہے نہ تو اس نے یہاں آ کر اپنی شکل دکھانا ضروری سمجھا، اور نہ ہی بھائی صاحب نے دوبارہ کوئی رابطہ کیا۔ میں تو بیٹی والا ہوں، کیسے منہ اٹھا کر بول دوں کہ میری بیٹی نکاح میں ہے آپ کے بیٹے کے؟ میں ایک آخری بار بات کروں گا بھائی صاحب سے، اگر تو وہ راضی ہوئے تو ٹھیک، نہیں تو میں طلاق کروا دوں گا۔ اس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا، سر یکدم چکرایا تھا عابد کی بات سن کر۔ اندر رامین کا بھی یہی حال تھا، وہ چند پل تو خاموش رہیں، لیکن پھر ان کی بے یقین سی آواز بھی اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ یہ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں عابد؟ میری بچی پر طلاق کا داغ؟ کچھ تو خدا کا خوف کرے۔ خدا کا خوف ہی تو کر رہا ہوں میں۔ عابد کی تلخ سی آواز نے اس کے اندر رہا سہامان بھی چھین لیا۔ آنسو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے پسلے تھے۔ وہ کیا کرے یا اللہ، وہ کہاں جائے؟ اپنی عزت بچا رہا ہوں میں، روک رہا ہوں اپنی عزت اچھلنے سے، اور ویسے بھی کون سا رابیل یہاں سے رخصت ہو کر گئی ہے جو اتنا مسئلہ بنے گا؟ طلاق ہو جائے گی، اور سائمہ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس نے لیکن اب اس کی ہمت نہیں مزید کچھ بھی سننے کی۔ وہ واپس پلٹی اور لرزتے قدموں سے زینے عبور کرتی کچن میں چلی آئی۔ دل اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ حد نہیں۔ اس نے ٹرے سلیب پر رکھی اور گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ کیا وہ کوئی کھلونا تھی کہ جس نے جب چاہا جیسے چاہا اسے چھوڑ دیا اور تھام لیا؟ کیا وہ اتنی کمتر تھی؟ کب تک وہ ان سب کے ساتھ محاذ پر کھڑی رہے گی؟ اور یہ ماس؟ اس نے بے دردی سے آنسو رگڑے، غصے سے اسے اور رونا آ رہا تھا۔ ایک دفعہ شکل دکھانے سے اس کا کیا جاتا تھا بھلا؟ وہ کیوں نہیں یہاں آ کر سب کو یقین دلا جاتا کہ اسے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں؟ وہ خوش نہیں تو کم از کم وہ راضی ہے۔ وہ کب تک اسے ایسے لوگوں کے سامنے سوالیہ نشان بنا کر رکھے گا؟ وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس رات وہ پھر سے اب کے ٹھنڈے زینوں پر گھٹنوں میں سے چہرہ دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ زینے ویسے ہی آدھے تاریک تھے اور آدھے روشن۔
रिदा उसके साथ आकर आहिस्ता से बैठी। उसने चेहरा नहीं मोड़ा। जानती थी कि वो उसे एक बार फिर से तसल्ली देने आई है। क्या हुआ है राबी, सब ठीक है ना? उसने गहरा सांस लेकर चेहरा उठाया। सामने लाउंज तारीकी में डूबा हुआ था। वो खुश्क निगाहों से उस तारीकी को देखे गई। मेरी मंगनी टूट चुकी है। निकाह किसी ऐसे शख्स से हो चुका है जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। मेरे वालिदैन मुझसे नाराज हैं। मैं उनके लिए बोझ बनती जा रही हूँ। मेरे सर पर हर वक्त एक खौफ सा सवार रहने लगा है, अपने मुस्तकबिल का खौफ। मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा रिदा। मुझे लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। रिदा ने भी दूसरी जानिब गहरा सांस लिया था। अपने हकूक के लिए तो इंसान को खुद ही आवाज उठानी पड़ती है राबी। कोई भी आकर सब कुछ थाली में सजाकर आपके सामने कभी पेश नहीं करेगा। अपने हकूक की जंग इंसान को खुद लड़नी पड़ती है। जैसे आपने अपने हिजाब के लिए जंग लड़ी है, वैसे ही अपने हकूक के लिए भी लड़े। उसकी वीरान आंखों में हल्की सी नमी उभरी थी। कोई भी मुझे कबूल नहीं करना चाहता रिदा। ना ही ताया ने पलटकर मेरी खबर गिरी की। और मास को तो रहने ही दो, कोई भी मुझसे खुश नहीं है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? वो इस वक्त सख्त दिल बर्दाश्ता थी जब ये इस तरह की बातें कर रही थी। नहीं तो वो कभी खुद को यूं डिग्रेड नहीं किया करती थी। ठीक है, उसकी खूबसूरती आंखों को चुंधियाया नहीं करती थी, लेकिन वो ऐसी भी नहीं थी कि किसी को पसंद ही ना आए। किस तरह की बातें कर रही हो राबी? तुम बहुत अच्छी हो। जिन्हें तुम पसंद नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि तुम उनके म्यार से कहीं बहुत बुलंद हो। हर कोई अगर आपको पसंद करने लगे तो ये कोई खास अच्छी बात नहीं है। जिंदगी में चंद लोगों की मौजूदगी ही इंसान के लिए काफी होती है। लेकिन मेरी जिंदगी में तो वो चंद इंसान हैं ही नहीं। हैं राबेल, तुम्हारी जिंदगी में वो लोग हैं। माज भाई ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। मैंने उनसे जितनी थोड़ी बहुत बातचीत की है, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो बहुत केयरिंग नेचर के अच्छे से बंदे हैं। उसने एक निगाह रिदा पर डाली थी, बुरा सा मुंह बनाकर। केयरिंग और मास बिल्कुल भी केयरिंग नहीं है वो। हमेशा यूं ही बात दरमियान में छोड़कर चला जाता है। अगर मुझसे एक पल को रुकी, यूं ऐसे निकाह का नाम लेना बहुत अजीब लग रहा था। रिश्ता जोड़ ही लिया है तो कम से कम अब आकर उसे फेस भी करे। मुझे क्यों उसने लोगों के सवालात के हवाले कर दिया है? उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो उससे नाराज है। रिदा ने मुस्कुराकर उसका बाजू सहलाया। अगर वो नहीं आ रहा तो तुम खुद उससे मिलने चली जाओ राबी। उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। क्या मतलब? मैं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकती? मतलब मैं खुद उसके इस रिश्ते के बारे में बात करने के लिए वहां पहुंच जाऊं? क्या उसे अंदाजा नहीं है हमारे माबैन रिश्ते का? उसे रिदा का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो कैसे मुंह उठाकर जा सकती थी? राबी, ये रिश्ता तुम्हारे लिए हर चीज से ज्यादा अहम होना चाहिए। मजबूत बनो। अपने हक के लिए बात करना सीखो। किसी भी तीसरे बंदे के बात करने से पहले माज भाई से खुद बात करो। रिश्ते कभी भी यूं दबकर और छुपकर परवान नहीं चढ़ते। रिश्तों को मजबूत करने के लिए बात करनी पड़ती है। हाँ या ना कहकर दो टोक जुमलों का तबादला करना पड़ता है। ये ऐसे नहीं होता कि अपनी झिझक में आकर तुम रिश्तों की बाबत बात ही ना करो। बाबा, फुप्पो या फिर अरहम भाई के साथ के बात करने से पहले तुम्हें खुद माज भाई से बात करनी चाहिए। रिदा कहकर आहिस्ता से उठ खड़ी हुई तो वो भी जैसे अपने ख्यालात से चौंकी। वो क्यों माँ से खुद बात नहीं कर रही? वो क्यों किसी दूसरे या फिर तीसरे बंदे के इंतजार में है? वो जो बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करने वाला था, क्या उसे किसी भी तरह यूं दरमियान में लटकाएगा? और इस सवाल का जवाब एक जोरदार नहीं था। माज ऐसा बंदा था ही नहीं। वो आर या पार वाला बंदा इंसान था। जो ठीक है और जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। वो तावीलें इकट्ठी करने वाला इंसान था ही नहीं। उसे यकीनन उससे बात करनी चाहिए किसी की भी बात करने से पहले। हाँ ज़रूर। जीनों से उतरकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। उसे इस तारीख कहफ में हल्का सा नूर दिखा था। दुरुस्त सिमट की तरफ इशारा करता हुआ नूर, और उसे उस नूर को थामना ही था, क्योंकि वो कहफ तो आज भी उतना ही तारीख था जितना कई सालों पहले था। असर की नमाज के बाद उसने स्याह अबाए पर ही स्याह हिजाब लपेटा और घर से बाहर निकल आई। सिर्फ रिदा जानती थी कि वो इस वक्त कहाँ जा रही है। आधे घंटे के मुसाफत पर ही ताया का घर था। उसे हैरत भी हुई, उनके इतने करीब रहने के बावजूद भी वो कभी भी उनके घर नहीं आई थी। एड्रेस उसे हमेशा से पता था, लेकिन उसे कभी यहाँ आने के बारे में सोचा ही नहीं था। घर के बाहर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो वो चौंकी, एक निगाह बाहर डाली और फिर गहरा सांस लेती गाड़ी से निकल आई। अगर जुमाज भी घर में हुआ तो वो उससे आज के आज ही बात कर लेगी। हाँ, अभी के अभी। लेकिन वो उससे बात करेगी क्या? वो उससे कहेगी क्या? एक साथ ही उसके दिल में हालीपन सा उतरने लगा था। घर का दरवाजा पार करने से पहले एक छोटा सा बागीचा बना हुआ था। वो ज्यादा बड़ा लॉन नहीं था, लेकिन उसकी तराश खराश पर बहुत तवज्जो दी गई थी, इसलिए वो उस कदर पुरकशिश लग रहा था। उसने सामने खड़े सब्ज बेलों से ढके इस घर को देखा। वो घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसे इस घर से अजीब सी अपनायत महसूस हुई थी। उसने दरवाजा खटखटाया।
चंद लम्हे धड़कते धड़कते दिल के साथ बाहर ही खड़ी रही। फिर हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा खुला। सामने ही वकार ताया खड़े थे। उसे देखकर बेहद हैरान हुए। फिर खुशगवार सी मुस्कुराहट के साथ उसे अंदर आने का कहा। वो अंदर चली आई। सामने ही एक छोटा सा सफेद टाइल्स वाला दाहली बरामदा था। एक जानिब को स्याह और कुर्सियां और मेज लगी थी। अंदर को जाती एक राहदारी थी जिससे गुजर कर आगे का लाउंज नजर आता था। वो खामोशी से हर जानिब देखती ताया के पीछे चली आई। तुम आ रही थी तो मुझे बता देती, मिलकर कुछ अच्छा सा पका लेते। तकल्लुफ में मत पड़े ताया, मैं कहाँ कर आई हूँ। अरे मेरी बेटी पहली दफा अपने घर आई है, इतना तकल्लुफ तो खैर बनता ही है। और वैसे भी तकल्लुफ कैसा ये अपना घर है तुम्हारा, जब चाहे आओ और जो चाहे पका कर खाओ। वो आखिर में हंसे। उन्हें जैसे अपनी ही बात ने मजा दिया था। लेकिन राबेल को उनकी हंसी इस समय बहुत नम महसूस हुई थी। उनकी आंखों का गुलाबीपन उनके काफी देर तक रोने का गुमास था। उसने आसपास निगाह घुमाई। एलईडी के साथ ही एक तस्वीर रखी थी, एक इंतहाई मुकम्मल तस्वीर। उसने आगे बढ़कर इस तस्वीर को उठाया, निगाहों के करीब करके उसे देखा। दुपट्टे के हाले में दमकता उनका चेहरा इस वक्त पूरी तरह से जगमगा रहा था। गोद में एक बच्चा था, शायद माज, और साथ ही जवान से वकार ताया डिनर सूट में मलबूस खड़े थे। उसने एक पल को सर उठाकर वकार की जानिब देखा। उसे उनकी आंखों में अब के नमी तैरती हुई महसूस हुई थी। ये हबीबा ताई है ना? उसे अंदाजा था, फिर भी उसने पूछ ही लिया। वकार ने बहुत से आंसू अंदर उतारकर इस बात में सर हिलाया था। बहुत खूबसूरत है। एक बार फिर से तस्वीर को देखते उसने आहिस्ता से कहा था। बैठो ना बच्चे, मैं तुम्हारे लिए। और वो किचन की जानिब बढ़ने ही लगे थे कि उसने उन्हें रोक लिया। हाथ से पकड़कर उन्हें सोफे तक ले आई। वो गीली आंखों से उसे देखे जा रहे थे। आप कैसे हैं ताया? मास कहाँ है? और आप दोबारा आए क्यों नहीं? ना कोई खैर ना खबर, कोई बात बुरी लगी है क्या आपको? उसने उनका चेहरा जांचते हुए नरमी से पूछा था। वो मुस्कुराए, फिर आंखें रगड़ी। अरे बच्चे, पिछले कई दिनों से रेस्टोरेंट की रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसीलिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल सका मुझे और मास को। वो भी इस काम में तब से बहुत बिजी हो गया था। ओह, उसके दिल से एकदम बोझ हटा था। और अभी कहाँ है मास? रेस्टोरेंट में है। बहुत आहिस्तगी से जवाब दिया था उन्होंने उसकी बात का। कब तक आएगा? और वकार को अब के समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। चंद पल कुछ सोचते रहे, फिर एक फैसला करके सर उठाया। तुम हमारे घर का हिस्सा हो, इसीलिए अब तुमसे किसी भी बात को छुपाना ज्यादती होगी। वो एक पल को रुके। राबेल उन्हें ही देख रही थी। माज आज घर नहीं आएगा। क्या? लेकिन क्यों? आज हबीबा की बरसी है राबेल। और उस पर अगले ही पल जैसे घड़ों पानी पड़ गया था। कुछ लम्हे वो हाली हाली सी ताया को देखे गई। इसीलिए उनकी आंखें गुलाबी थीं, इसलिए वो रोते रहे थे। लेकिन वो इतनी सर्द रात में बाहर क्या करेगा ताया? 29 नवंबर की रात माज अहमद पर भारी थी। वो उसे अब समझ आया था। मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस दिन घर नहीं आता। जाने कहाँ होता है। मैंने बारहा पूछा भी, लेकिन वो मुझे नहीं बताता। वो शिकस्ता से बोलते हुए उसे इस वक्त बहुत कमजोर लगे थे। मास के साथ पिछले सालों में क्या हुआ था ताया? क्या आप मुझे बता सकते हैं? उसने बेख्तियार तस्वीर एक जानिब रखी और आगे को होकर बैठी। उसे उसके बारे में सब जानना ही था। ताया ने चश्मा हटाकर आंखों में फैलती धुंध साफ की थी, फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। तुम कुछ खा तो लो राबेल। मुझे कुछ नहीं खाना है ताया। अब आप मुझे बस ये बताएं कि आखिर पिछली जिंदगी में मास के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इतना जख्मी है, इस कदर तल्ख है। मैं जानना चाहती हूँ ताया, प्लीज मुझे सब बताएं। और वकार ने लम्हे भर को गहरा सांस लेकर उसे देखा था। वापसी पर गाड़ी में बैठते वक्त इशा का गहरा अंधेरा हर सू फैलने लगा था। वो तेजी से गाड़ी में आकर बैठी और कब के रुके आंसू को बहने दिया। ड्राइवर अब गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था और राबेल वो सर टिकाए खिड़की से बाहर देखती खामोशी से रो रही थी। जब मुझे वो उस रात फुटपाथ पर मिला तो बहुत बदल गया था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। हुलिया अजीब सा था, निगाहें बदल गई थीं। वो इस सारे अरसे में बहुत से गुनाह कर चुका था राबेल। वो हबीबा का माज रहा ही नहीं था। वो सब कुछ भूल गया था। वो हबीबा का पढ़ाया गया हर सबक भूल चुका था। वो दुखते दिल के साथ उनकी बातें याद कर रही थी। उसने पिछले कई सालों से कुरान को हाथ तक नहीं लगाया है। वो अपना हिफ्स किया कुरान भूल गया राबेल। उसकी आंख से दूसरा आंसू टूट कर गिरा था। कुरान को पाकर खो देने की अजियत बहुत ज्यादा थी। उसका दिल कटने लगा। उसने इस एक साल के अरसे में इतने भत्ते वसूले थे कि आखिर में तो उसे गिनती भी भूल गई थी। उसे अपना नाम तक भूल गया था। कुछ भी याद ना था उसे। कुछ भी नहीं। अपने गम को कुचलने का इससे बेहतर तरीका शायद उसके पास था ही नहीं। वो खुद को भुला देता तभी तो हबीबा को भुला सकता था, और उसने वही किया।
उसने हबीबा की माज को भुला दिया। जिस लड़के ने खड़ी होकर नमाजें पढ़ानी थी, उसने जुर्म की दुनिया में तारीकी को चुन लिया। आंसू बहते हुए उसके रुखसारों पर फिसल रहे थे और वो इस पानी को अब के रोक देने पर कादिर नहीं थी। दुनिया ने हबीबा को उससे छीन लिया तो माज ने माज ही को खुद से छीन लिया। उसकी गाड़ी अब के एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकी थी। वो आहिस्ता से बाहर निकल आई। मैंने उससे कहा कि क्या तुम अपना कुरान वापस नहीं लेना चाहते? तो जानती हो उसने मुझे क्या कहा था? वो आहिस्तगी से कदम उठाती आगे बढ़ने लगी थी। उसने कहा कि कुरान को छोड़कर वो आपके पुरसकून हो गया है। हालांकि वो पुरसकून नहीं हुआ था राबेल। वो तो कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा था और इस ना महसूस होने वाली अजियत को वो सुकून से तशबीह दे रहा था। मेरा माज मुझसे खो गया था। उसने आगे बढ़कर शीशे का दरवाजा धकेला। अंदर का नरम गरम सा माहौल वैसा ही था। लोग अलग अलग बैठे खाना खा रहे थे। रात गहरी होने के बायस अब के आहिस्ता आहिस्ता रश भी छट रहा था। शीशों से ढका वो रेस्टोरेंट बिलाशुबा बहुत खूबसूरत था। मैं उसे जबरदस्ती इस तारीख दुनिया से निकाल लाया। बहुत से दोस्तों के असर और रसूख के बायस मैं उसमें कामयाब तो हो गया, लेकिन राबेल, मैं मास को दोबारा कुरान की जानिब नहीं ला सका। वो नमाज पढ़ता है लेकिन उसने कुरान छोड़ दिया। उसने उसे भुला दिया। उसने कदम जरा आगे बढ़ाए। रेस्टोरेंट का किचन सामने ही था। उनके आगे नए तर्ज के लकड़ी के दरवाजे नस्ब थे। वो बहुत से वेटर्स हाथों में तश्तरियां लिए आ जा रहे थे। उसने भी कदम इसी जानिब को बढ़ाए। मैंने हबीबा के बाद मास को भी खो दिया था और इस सब का जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। मेरे एक गलत फैसले ने मेरे घर की सारी खुशियां मुझसे छीन ली। वो घर जिसमें हर तरफ सकीनत रहा करती थी, उस घर में अब के सिर्फ वहशत रहने लगी थी। उसने दरवाजा धकेला और फिर वो उसे सामने ही नजर आ गया। उसके आसपास जिंदगी में पहली बार घंटी सी बजी थी। मधुर सी घंटी। वो जो आस्तीने कोहनियों तक लपेटे, गर्दन झुकाए, माथे पर गिरे बालों से बेनियाज खामोशी से मसाला भून रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे देखकर वो लम्हे भर के लिए साकित हुई थी, क्योंकि इस घंटी की आवाज अब भी कहीं पीछे से आ रही थी। वो दरवाजे में खड़ी खामोशी से उसे देखे गई। इस लड़के ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया था, यहाँ तक कि अपना आप भी। उसका दिल एक बार फिर से दुखा था। इसी पल माज ने कुछ महसूस करके सर उठाया और फिर अगले पल वो उसे दरवाजे में खड़ा देखकर हैरान रह गया। राबेल उसके देखने पर भी खामोशी से उसे देखे गई थी। कई लम्हे आए और गुजर गए। दो नफूस टिकटिकी बांधे एक दूसरे की जानिब देख रहे थे और फिर अगले ही लम्हे वो उसकी जानिब बढ़ गई थी। उसने कई इंसानों को अपने हाथ में लिए गए इस तमांचे से जख्मी किया था। कई लोगों को उसने खौफजदा करके उनसे भत्ते वसूले थे। वो एक तरह का माफिया राज ही था। माफिया अमूमन पूरे घरानों समेत काम करते हैं, लेकिन उस इलाके का बॉस सिर्फ सुल्तान मीर था। ये उसका इलाका था। उसके इलाके का मतलब था कि यहाँ वो धंधा कर सकता था, कोई और नहीं। इस इलाके की हदूद में वो भत्ता वसूल कर सकता था, कोई और यहाँ आकर नहीं मार सकता था। शुरू शुरू में उसे उनकी सियासतें, उनके अंदाज और उनकी बातें समझ नहीं आया करती थी, लेकिन जैसे जैसे उसने उनके साथ वक्त गुजारना शुरू किया, उसे उनकी बातें समझ आने लगी। उसे उनके ज़ूम आईनी से जुमले डिकोड करने आ गए। उसे उनके इशारे समझ में आने लगे। उसने गन्स चलाना सीख ली। हर गन को हैंडल करने का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है और उसने हर उस तरीक़ाकार को जानना चाहा जिससे वो उन गन्स को बआसानी हैंडल कर सकता। सुल्तान को उससे खास किस्म की अपनायत थी। वो उसकी खाली खाली नज़रों से कभी कभार हैरान रह जाया करता था। 14 साल की उम्र में वो इस कदर सपाट था कि बड़े बड़े उम्र रसीदा लोगों की संजीदगी उसके सपाट से तासुर के आगे मात खा जाया करती थी। इसी अपनायत और लगाव का नतीजा था कि सुल्तान ने उसे कभी फ्रंट लाइन पर आने ही नहीं दिया। उसे डर था कि वो कभी किसी भी तरह से पुलिस की तहवील में आ सकता है या फिर सामने रहने पर वो बहुत सौ की नज़रों का मरकज़ बन सकता है। सो उसे हमेशा स्टेज के पीछे का काम दिया गया। उसे लोगों के असासाजात को छानने, उनकी ऑफशोर कंपनीज को खंगालने और फिर उनकी कमजोरियां इकट्ठी करने के लिए रखा गया। पिछले 1 साल के अरसे में उसने इतने लोगों की जिंदगियां खंगाल ली थीं कि उसे अब के उनके नाम भी भूल गए थे। जिंदगियां खंगालते खंगालते उसे अंदाजा हुआ कि जो जैसा है वो वैसा नहीं है, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। लोग जो होते हैं वो नजर नहीं आते और जो नजर आते हैं वो होते नहीं। लोगों के ज़ाहिरी हुलियों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि किसके अंदर कौन सा जानवर सांस ले रहा है। उसे अरसे तक लोगों को इस तरह जज किया था। इसी जजमेंट की वजह से कई दफ़ा उसे अपने काम में नाकामी का सामना करना पड़ा। वो हैरान रह जाता था कि इस कदर इख्तलाफ आखिर लोगों के ज़ाहिर और बातिन में हो कैसे सकता है। लेकिन फिर इस तारीक दुनिया में रहकर उसे अंदाज़ा हो ही गया कि इंसान नामी मखलूक क्या चीज़ होती है, उसकी कितनी परतें हैं और वो कितनी गहरी तहों के बाद जाकर खुलता है।
انسان بہت خوفناک مخلوق ہے معاذ، اس دنیا کے سب سے خوفناک مخلوق۔ انسان کبھی ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں، انہیں کبھی ان کے ظاہری حلیوں سے جج نہیں کیا کرتے۔ کون اپنے اندر کون سی جنگ لڑ رہا ہے اور کون اندر جنگ جیت چکا ہے، تمہیں اس کا اندازہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے کام کے 3 اصول تھے: پہلا، لوگوں کے بول پر کبھی یقین نہ کرنا، دوسرا، انہیں اپنے ارادوں سے کوسوں دور رکھنا، اور تیسرا، ہمیشہ اپنی کمزوریوں کی حفاظت کرنا۔ عرصہ ہوا اس نے لوگوں کی زبانوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لوگ جو کہتے تھے وہ سچ یا جھوٹ کی آمیزش کا ایک پیالہ ہوا کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس تاریکی میں رہ کر اس کا اپنا وجود بھی آہستہ آہستہ اس تاریکی کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ اس نے نمازیں چھوڑ دی تھی، قرآن کے بارے میں تو کبھی اس سے دوبارہ سوچنے کی جرت ہی نہ کی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے یاد کیے گئے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ سکتا۔ اس نے اس عرصے میں اس معاذ کو کھو دیا تھا جو قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھنے کا حق رکھتا تھا اور قرآن سے دنیا روشن کرنے کی امنگ لیے زندہ تھا۔ اب کا معاذ تو بس خاموشی سے دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے سیاہی میں گھورتا رہتا۔ اس کا بولنا نہ بولنے کے برابر ہو گیا۔ کوئی اس سے سوال کرتا تو وہ جواب دے دیتا اور بس، اسے باتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اسے لوگوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ کئی دفعہ اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے بدلہ لینے سے روکا جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ایک ایک کو ختم کر دیتا، وہ ان میں سے ایک ایک کی لاشیں بچھا دیتا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے وہ آخری یخ سا لمس اب تک یاد تھا، اسے سب کچھ بھول گیا تھا، لیکن وہ آخری نصیحت وہ کہیں اس کے اندر تک گڑ گئی تھی۔ سائمہ کے بارے میں جتنی معلومات اس کے پاس تھی شاید ہی کسی کے پاس ہو سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے اور اس شادی کے بعد ان کی اولاد نہ ہونے کے باعث طلاق بھی ہو چکی ہے۔ دوسری شادی کوئی خاص دھوم دھام سے نہیں کی گئی کیونکہ اب کی شادی ان سے عمر میں کافی بڑے انسان سے ہو رہی تھی۔ عباد کا 12 سالہ بیٹا بھی تھا، اسے اس کے سوتیلے بیٹے کا نام تک پتا تھا۔ اس کا نام ارحم تھا، وہ سائمہ کا سوتیلا بیٹا تھا۔ ساری زندگی جن سوتیلے رشتوں سے انہوں نے نفرت کی تھی، اب خدا نے ان کی زندگی میں ایک سوتیلی اولاد ڈال دی تھی۔ وہ لڑکا معاذ سے 1 سال چھوٹا تھا، اس نے خود کو روک رکھا، اس نے اس لڑکے کو نقصان پہنچانے سے خود کو باز رکھا۔ انہیں معاف کرنا تھا، اور اگر اس نے انہیں معاف نہیں کیا تو وہ اس بڑے دن اپنی ماں کو کیا منہ دکھائے گا، وہ کیسے ان کا سامنا کرے گا۔ لیکن انہیں معاف کرنا، انہیں ان کی سیاہ کاریوں پر معاف کرنا اس کے بس میں تھا ہی نہیں۔ کبھی کبھی وہ سختی سے مٹھی بھینچے خود کو ان ساری زہریلی سوچوں سے بچانے کی کوشش کرتا تو سلطان اس کے ساتھ آ بیٹھتا، اس کی پیٹھ تھپکتا، اسے بہلاتا۔ وہ اسے جانتا تھا، وہ اسے جاننے لگا تھا، اس کے ہر انداز کو پہچاننے لگا تھا۔ لیکن پھر ایک دن وہ ہوا جس کے بعد معاذ شوروائی کی زندگی گویا چلتے چلتے رک سی گئی۔ وہ حسب معمول جینس کی جیب میں گن عرصے چہرے پر نقاب چڑھائے اپنے ایک ساتھی کا انتظار کر رہا تھا۔ یکایک اس کے کانوں میں ایک آواز سی گونجی۔ وہ ماں اور بیٹا تھے جو سڑک کے اس پاس سے گزر کر اس طرف کو آ رہے تھے۔ ماں پورے برقع اور نقاب میں تھی، ساتھ بیٹا 12 سال کا تھا۔ اس کے بیدار سے سفید شلوار کرتے کو دیکھتے وہ گمسم سا ہو گیا، کچھ چمکا تھا اس کی یادداشت میں۔ تم نے مجھے وہ سورت سنانی ہے جو کل تم اپنے کمرے میں حفظ کر رہے تھے، ماں نے گردن جھکا کر بیٹے سے کہا تھا۔ بیٹے نے برا سا منہ بنا کر چہرہ اوپر کو اٹھایا، اس کے اندر کچھ ڈوبنے لگا تھا۔ آپ کو میرا قرآن پڑھنا اتنا پسند کیوں ہے؟ وہ اب کے چلتے چلتے اس کے قریب سے گزرنے لگے تھے۔ معاذ بنا پلکے جھپکائے سکڑتے دل کے ساتھ ان دونوں کو دیکھے گیا۔ کیونکہ میرا بیٹا جتنا قرآن پڑھے گا اتنا ہی اس کے حصے کا اجر کا ایک حصہ مجھے بھی ملے گا۔ مجھے وہ حصہ چاہیے، ایک بار نہیں بار بار چاہیے۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، آنکھیں گلابی پڑنے لگی۔ معاذ احمد شوراوی بہت عرصے بعد لڑکھڑایا تھا۔ یکایک دوسری جانب سے ایک نقاب پوش ان دونوں کی جانب بڑھا۔ وہ اس کا ساتھی تھا اور اکثر خود کا پیٹ پالنے کے لیے وہ یوں سڑک پر چلتے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، چند ساتوں کا تعین تھا۔ اس کے ساتھی نے اس عورت پر بندوق تانی تو اس کی کنپٹیاں جل اٹھیں۔ وہ کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ ماں اور بیٹا اس افتاد پر ڈر ڈر کر پیچھے ہٹے تھے۔ بچہ خوفزدہ ہو کر ماں سے لپٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو پیچھے کی جانب گھسیٹا اور اسے ان سے دور کیا۔ منظر بدلنے لگا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا روتے ہوئے ان سے بھیک مانگنے لگا تھا کہ اس کی ماں کو چھوڑ دیا جائے۔ سب منظر آپس میں گڑمڑ ہو رہے تھے۔ اسے کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک زوردار مکہ اس نے اس کے منہ پر مارا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ اس کا ساتھی اس کے ایسے رد عمل پر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ معاذ اس عورت کی جانب گھوما، وہ گیلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ لیکن عورت نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا حلیہ ہی ایسا تھا کہ وہ خوفزدہ ہو کر اپنا بیٹا لیے وہاں سے بھاگ گئیں۔ وہ انہیں دور جاتا ہوا دیکھے گیا۔ دھندلی سی نمی سارے منظر دھندلانے لگی۔
रात में वो अपने कमरे की दीवार से कमर टिकाए सर झुका कर बैठा था। यकायक सुल्तान उसके साथ आ बैठा। उसने सर नहीं उठाया। अकबर बता रहा था कि तुमने मारा है इसे। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। आमाल की वजाहतें देना तो उसे अरसा हुआ छोड़ दिया था। लोग सिर्फ उन्हीं बातों पर यकीन करते हैं जिन पर यकीन करना चाहते हैं। कोई कभी भी आपकी वजाहतों पर यकीन नहीं करता। उसने भी एक से दूसरी बात करना खुद पर हराम कर रखा था। क्यों खुद को तकलीफ देते हो? उसकी बात पर उसके चेहरे चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट उभरी थी। जो तकलीफ मिलनी होती है वो मिलकर रहती है। जो तकलीफ मिलनी होती है वो वाकई मिलकर रहती है, बिलाशुबा। उसे उससे कोई इख्तलाफ ना था। लेकिन माज मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, बहुत दूर। किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? उसके ने तेजी से उसकी बात काटी थी। सुल्तान ने लम्हे भर को गहरा सांस लिया, फिर उसकी सुरमई आंखों में अपनायत से देखा। तुम्हारे बाबा के बहुत से बड़े बड़े दोस्तों ने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की है, और उन सब का मुतालबा यही है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम जानते हो ना कि अगर मैं नहीं चाहूंगा तो तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। कभी भी कोई भी तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता, चाहे कितना भी असर और रसूख रखता हो वो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाओ। उसे उसके लहजे से तकलीफ हुई थी। तुम मुझ पर तरस खा रहे हो, जानते हो ना मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा माज। तुम माजूर या फिर किसी भी तरह कमजोर नहीं हो कि तुम पर तरस खाया जाए। तुम एक मजबूत लड़के हो, तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम्हारी इस तारीख दुनिया में कोई जगह नहीं। उसने तलखी से सर झटका। मैं बिल्कुल भी अच्छा बेटा नहीं हूँ। अगर अच्छे नहीं होते तो अब तक वो सब कब्रों में होते जिन्होंने तुम्हारी खुशियों को कब्रों की राह दिखाई है। उसने बेसाहता सर उठाकर उसे देखा था। तुम एक अच्छे बेटे थे, अच्छे बेटे हो और अच्छे बेटे रहोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। जानते हो, हम जैसे इन जुर्म की तारीकियों को हैंडल करने वाले कहीं ना कहीं अंदर इस ख्वाहिश के साथ जिंदा होते हैं कि काश हम भी इस अजाब से निकल सकें, इन गुनाहों के दलदल से खुद को आज़ाद करवा लें। लेकिन मास आपके उसने उसकी जानिब देखा था। इंसान हर गुनाह से नहीं निकल सकता, वो चाहे तब भी नहीं। मैं तुम्हें ऐसी किसी अजियत में देखना नहीं चाहता। तुम चले जाओ यहाँ से। मुझसे गलती हो गई जो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तुम यहाँ के लिए नहीं बने। अंदर ही अंदर कहीं मैं भी तुम्हारे वालिद का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे यहाँ आने के से ही मैं चाहता था कि तुम यहाँ से चले जाओ। और उस रात उसे फिर से याद नहीं था कि वो किन रास्तों पर चल रहा है। फुटपाथ के साथ लग कर बैठे वो पूरी रात उसने गुजारी थी। लेकिन फिर सुबह की सफेदी के साथ ही उसके ऐन साथ एक गाड़ी रुकी। उसने खुश्क आंखें उठाई, सामने ही वकार खड़े थे। इस सारे अरसे में वो इतने कमजोर हो गए थे कि हद नहीं। माज खामोशी से उठ खड़ा हुआ। वो आगे बढ़े लेकिन वो बेसाहता दो कदम पीछे हटा था। वकार अपनी जगह पर ही साकित हो गए, और फिर वो अगली कोई भी बात किए बगैर ही गाड़ी में जा बैठा था। उसने फैसला कर लिया कि अब वो कभी इस तारीख दुनिया की जानिब नहीं पलटेगा। वो हबीबा का बेटा था। वो इस तारीकी के लिए नहीं बना था। वकार के हवा में मौलिक हाथ बेदम से पहलुओं में आ गिरे। उनका माज उन्हें मिल गया था, लेकिन क्या ये वाकई वही माज था जो उनसे खो गया था? जिंदगी के अगले कई साल यूं ही खामोशी से गुजर गए। वो वकार से बात नहीं किया करता था। उसे उनसे बहुत से गिले थे, बहुत से शिकवे थे। वो ऐसे कैसे उन्हें उनके फैसलों पर माफ कर सकता था? लेकिन वक्त का मध्यम पहिया आहिस्ता आहिस्ता हर जख्म को मुंदमिल करता गया। वो कभी कभी सुल्तान से मिलने चला जाता। उसे कोई बीमारी लग गई थी, इसीलिए अब के वो खामोशी से एक जानिब पड़ा रहता था। वो अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। उसने भी बातें कबूल करना शुरू कर दी। लेकिन 29 नवंबर की वो रात आज भी कहीं उसमें सांस ले रही थी, और इस सांस की अजियत उसे हर लम्हा अपने अंदर उतरती महसूस होती थी। मार्स को भी इस अंधेरी कहफ से निकालना है, और उस काम के लिए राबेल को चुना गया ताकि वो उसे निकाले अंधेरे से और ले आए रोशनी की तरफ। और राबेल को चुना गया आसमानों पर, उसकी हमसफर, उसकी साथी, उसकी हमदर्द के तौर पर। तो बस साबित हुआ कि अल्लाह की रस्सी को जो मजबूती से पकड़ ले वो उसे अकेला नहीं छोड़ता। एक कारी आलियान सिकंदर का खूबसूरत तबसरा। उसने हैरत से इस स्याह अबाया से ढकी लड़की को देखा था। चेहरे के गिर्द स्याही हिजाब लपेटे वो स्टार्ट की दुनिया में रेशम का पैबंद लगती थी। अबाए हिजाब और सफ़ेद स्नीकर्स में हाथ बांधे दरवाजे के साथ लग खड़खड़ी वो उसे हर गुजरते लम्हे में हैरान कर रही थी। फिर यकायक उसने देखा कि वो उसकी जानिब बढ़ रही है। उसने खंगार कर आस पास देखा था। बहुत से वर्कर्स जा चुके थे, और इक्का दुक्का वर्कर्स अपने अपने लिबास तब्दील किए आपके जाने की तैयारी में थे। रावेल करीब आकर खामोशी से उसके सामने खड़ी हो गई थी। उसने एक बार फिर से आस-पास देखा। वर्कर्स के लिए आंखों में वाज़ेह तंबीह थी। देखते ही देखते सब वर्कर्स जल्दी-जल्दी बाहर निकले तो वो दोनों तन्हा रह गए। "यहाँ क्यों आई हो?" मसाला भून चुका था, और उसने उसकी आँच बंद करते हुए सरसरी सा पूछा। आंखों में उसे देखकर आ जाने वाली हैरत को उसने अब के यूं छुपाया था।
क्योंकि तुम मुझे घर पर नहीं मिले थे तो मैं यहाँ चली आई। वो उसे ही देख रही थी, कथई आंखों का मतोरम सा तासुर अब तक उसकी आंखों में चमक रहा था। माज ने उसकी बात पर चेहरा उसकी जानिब फेरा। अबरू सवालिया से इकट्ठा इकट्ठा थे। तुम घर क्यों गई थी? तुमसे मिलने। उसकी साफ गोई पर माज लम्हे भर को हैरान हुआ था। मैं मसरूफ हूँ फिलहाल। ये एक तरह से वजाहत थी कि मैं अभी तुमसे बात करने के मूड में हरगिज नहीं हूँ, इसीलिए तुम जा सकती हो। लेकिन राबेल नहीं हिली, वैसे ही हाथ बांधे उसे देखे गई। थोड़ी सी बात करनी है। थोड़ी सी बात भी नहीं करोगे? चेहरा जरा आगे निकालकर उसे देखना चाहा। मास ने एक बार फिर से उसे देखा था। कथई आंखों में जगमगाती उम्मीद लिए वो उसी को देख रही थी। क्या वो उसे इनकार कर सकता था? ओके, सुन रहा हूँ, कहो। उसने सर हिलाकर उसे इजाजत देते हुए मसाला एक डोंगे में निकाला। राबेल चंद लम्हे तो खामोश रही, फिर उदासी से नजरें अपने कदमों पर झुकाईं। क्या तुम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो मास? उसके काम करते हाथ लम्हे भर को साकित हुए थे। यकीनन ये अंदाजा भी तुमने ही कायम किया होगा। राबेल, तुम अपने अंदाजे अपने पास रखो। हाँ या नहीं मास, मुझे हाँ या नहीं में जवाब चाहिए। और उसके ऐसे अंदाज पर उसने पैन रख कर उसकी जानिब एक लम्हे को देखा था। वो उसे नहीं देख रही थी, उसकी निगाहें अपने कदमों पर झुकी थीं। यकीनन वो अपनी इज्जत नफ्स पर पैर रख कर ये बात यहाँ करने आई थी। हाँ, मैं राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। और कुछ? उसकी बात पर वो उसने बेख्तियार सर उठाया था। वो अब के सारे बर्तन सिंक में धोने के लिए जमा करने लगा था। वाकई? उसने कंधे उचकाए थे। वो पास चली आई, बेयकीन निगाहें अब तक उसे तक रही थीं। मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है राबेल। तो फिर तुम घर क्यों नहीं आ रहे? मसरूफ था पिछले दिनों बहुत ज़्यादा। फिर भी तुम्हें तो कुछ ख्याल करना चाहिए हमारे माँ बहन रिश्ते का। उसे एकदम से उस पर बहुत गुस्सा आया था। लोग उसके पीछे उसके साथ क्या क्या करने को तैयार बैठे थे, और यहाँ वो अपने कामों में मसरूफ था। माज ने एक नज़र उसे देखा, खौफ ज़दा सी नज़र थी वो। अब मुझे तंग ना करो और जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही। पहले मुझे बताओ कि तुम इतने गाफिल कैसे हो सकते हो? अल्लाह ताला देख रहे हैं तुम्हें, और वो तुम्हें गुनाह देंगे तुम्हारी हरकतों पर, समझे? आखिर में बुलंद आवाज से कहा था। मास ने बेजार सी सांस खारिज की थी, फिर हाथ धोकर झटके और उसे बाजू से पकड़कर दरमियान में लगे मेज की इतराफी कुर्सी पर ला बिठाया। अब यहाँ बैठो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ कि तुम मुझे? अजीब हो बिल्कुल। एक तो मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। जनाब को खुद तो कोई होश था नहीं, और ऊपर से अब ये नखरे। नखरे देखो मास, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो हर वक्त तुम्हारे नखरे उठाती रहूंगी। मैं एक मजबूत लड़की हूँ। कुछ उल्टा सीधा करोगे तो तुम्हें 1 मिनट में ठीक भी कर दूंगी। वो वहां बैठे बैठे भी बाज नहीं आई थी। माज ने जोर से प्लेट स्लैब पर रखी थी। तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि लोग मेरे साथ तुम्हारे पीछे क्या कर रहे हैं? लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम करते रहो अपने काम, मैं तो जाऊं भाड़ में। माज ने अब के उसके हवाले पर लम्हे भर को उसकी जानिब पलट कर देखा था। वो पानी पानी सी आंखों से उसे ही देख रही थी। उसे पता था कि वो उससे गिला कर रही है? क्या वो जानती थी कि वो बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है? वो जानती नहीं थी या फिर मासूम थी? माज को समझ नहीं आया। वो इस रिश्ते को वक्त देना चाहता था, वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसके घर भी वो इसीलिए नहीं गया था क्योंकि वो फिलहाल उसे भी वक्त देना चाहता था कि वो इस रिश्ते को कबूल कर ले। उसे पता था कि वो हसास है, ये सब कबूल करने के लिए उसे वक्त दरकार था। लेकिन फिर वो क्या बात थी जो उसे यहाँ तक खींच लाई थी? क्या कोई मसला था उसे? वो उसके चेहरे को चंद लम्हे जांचता रहा तो राबेल ने बेसाख्ता उसे नजर चुराई थी। यूं लगता था अगर वो मजीद उसे देखती रही तो वो उसके अंदर का हाल पढ़ लेगा, और अभी अभी वो उसे इतना अंदर नहीं उतारना चाहती थी। इतनी जल्दी कैसे वो उसे अपने दिल तक रसाई की इजाजत दे सकती थी? लेकिन कुछ था जो बिला इजाजत ही उसके दिल में दाखिल होने लगा था। उसके निगाह चुराने पर उसने भी सूरत से चेहरा मोड़ा और बर्तन धोने लगा। अगले कई पल कोई कोई कुछ न बोला। राबेल अपनी जगह खामोश हो गई थी, और माज वो तो वैसे भी खामोश रहता था। फिर उसे कुछ लम्हों बाद महसूस हुआ कि जैसे वो उसके पास उठकर आ रही है। उसने तवज्जो नहीं दी। खामोशी से बर्तन समेट कर रैक में रखे। माज, उसकी कमजोर सी आवाज उसे बिल्कुल अपने बराबर से सुनाई दी थी, लेकिन वो नहीं मुड़ा। मास, उसे उसकी कोहनी तक मुड़ी आस्तीन हल्के से खींची, जैसे उसे अपनी जानिब मुतवज्जे करना चाहा। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। क्या लड़की थी ये! उसने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। आई एम सॉरी। मुझे पता है मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि मैं कितनी अजीब हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं सकते कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तुम्हें मेरे मसले नहीं समझ आएंगे। उसने उसके झुके सर को देखकर लम्हे भर के लिए सर हिलाया था, लेकिन फिर वो अगले पल उसके साथ ही खिंचता चला गया। वो उसे उसकी आस्तीन से पकड़े कुर्सी तक लाई। वो आहिस्ता से उसे देखते हुए बैठ गया। फिर वो उसके सामने बैठी, चंद पल लब काटती रही। कुछ देर पहले की सारी हठधर्मी अब की खामोश हुई उसे देख रही थी। माँ ने गहरा सांस लिया। तुम समझाओ, मैं तुम्हारे मसले समझने की कोशिश करूंगा। बताओ क्या हुआ है?
उसने अब के बहुत नरमी से कहा था, जो कुछ भी हुआ था इसमें राबेल का कोई कसूर नहीं था। ये सब उसका अपना फैसला था। एक बात बताओ, हर का क्या मतलब होता है? और वो जो उसके मसले सुनने के लिए खुद को तैयार कर चुका था, लम्हे भर को नासमझी से पीछे को हुआ। ये किसने कहा है तुम्हें? उसे पता था कि खानदान में कहीं दूर दूर तक कोई भी पठान नहीं, सिर्फ उसकी दादी ही पठान थी, जिसकी वजह से वकार को पश्तो आती थी। उसके उनके अलावा कोई भी इस जुबान से वाकिफ ना था। लेकिन अभी राबेल के मुंह से ये लफ्ज सुनकर वो लम्हे भर को हैरान हुआ था। वकार ताया तुम्हें कह रहे थे, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा लड़का। मजे से कंधे उचकाकर जवाब दिया। राबेल ने मशकूक सा उसे देखा। लेकिन उन्होंने बहुत गुस्से में कहा था तुम्हें, ये इसका मतलब नहीं हो सकता। और उसके जवाब पर वो चेहरा झुकाकर खामोशी से हंस दिया था। क्या करे वो इस लड़की का। राबेल अब के नासमझी से उसकी हंसी को देख रही थी। उसे उसे कभी भी हंसते हुए नहीं देखा था, लेकिन वो उसे कहना चाहती थी कि वो हंसते हुए बहुत अच्छा लगता है। उफ, ये मैं क्या सोच रही हूँ। फौरन सर झटका। इसका मतलब होता है गधा। वो आपके मुस्कुरा रहा था। राबेल की आंखें लम्हे भर को फैली। मास को उसे ऐसे देकर हैरान देकर और हंसी आई थी। वो तुम्हें गधा क्यों कहते हैं? वैसे एक मिनट, बिल्कुल ठीक कहते हैं वो तुम्हें। कितना तंग करते होगे तुम ताया को, पता नहीं बर्दाश्त कैसे करते हैं वो तुम्हें। उसे एक पल को ताया पर तरस आया था। मास वैसे ही बैठा रहा, महज कंधे उचकाए। ये उसका सबसे पसंदीदा तासुर था, जैसे सो है सो है। फिर क्यों आई हो तुम यहाँ? और उसके अगले ही लम्हे वो पुराना मास बन गया था। वो खामोशी से चंद पल उसकी सुरमई आंखों को देखे गई। कई लम्हे पहले की बातें फिर से उसे याद आने लगी थी। तुम इस रात घर क्यों नहीं जाते मास? और फिर वो जो लापरवाही से बैठा था चौंका। उसे देखा। वो उसके चौंकने पर भी नहीं चौंकी थी, वैसे ही उसे देखे गई। ये किसने? वो कहते कहते रुक सा गया। लम्हे भर में समझ आया था उसे कि उसे यकीनन बाबा ने ही इस बारे में बताया होगा। उनसे तो खैर वो बाद में निपटेगा, पहले राबेल से हिसाब बराबर कर ले। देखो राबेल, कुछ मामलात में मैं किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं देता हूँ, हता के बाबा को भी नहीं। तो बेहतर है कि तुम मुझसे इस बारे में कोई तफ्तीश मत करो, क्योंकि मेरी जुबान बहुत कड़वी है। लोगों के हलक से कई दिनों तक इन जुमलों की कड़वास नहीं जाती। वो बहुत बेरहमी से बोल रहा था। राबेल की आंखों में पानी सा भरा। उसके यहाँ तक पहुंच जाने में उसके घर वालों का एक बहुत बड़ा किरदार रहा था। वो इन सब की गलतियों का अजाला करना चाहती थी। वो उन सब की तरफ से उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। तुमने ये कुरान क्यों छोड़ दिया मास? उसने बहुत दुखी दिल के साथ ये सवाल किया था। माज ने बेबसी से उसे देखा। पिछले कई सालों में किसी ने उससे ये सवाल करने की जरूरत नहीं की थी। कोई ये जरूरत कर ही ना सका था। और एक ये लड़की थी जिसे वो ठीक से जानता भी नहीं था। वो उसके सामने बैठी उससे वो बातें पूछ रही थी कि जिन बातों को उसने खुद से भी छुपाया था। राबेल, तुम मैं जानती हूँ मास, तारीख कहफ की अजियत क्या होती है। मुझे पता है कि इस स्याही में इंसान की खौफजदा सी आवाज़ कहफ की दीवारों से पलट कर वापस आ जाया करती है। कोई भी लरजते वजूद पर इस समय चादर डालने वाला नहीं होता है। कोई इंसान इस पुकार पर नहीं आता है मास। हमें खुद में खुद ही सिमट कर खुद की ढारस बंधानी होती है। तंगो तारीख कहफ का सफ़र आसान नहीं होता मास। कदमों के साथ साथ रूह तक जख्मी हो जाती है। वो उसे नहीं सुन रही थी, वो उसे सुना रही थी। उसका सुरमई सा इर्तकाज लम्हे भर में गुलाबी हो गया था। वही स्याह रात हर सू फैलने लगी थी। दिल सुकड़ने लगा था। मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया मास। हमारी जहालत की वजह से तुमने ताई को खो दिया। तुमने अपनी जिंदगी हमारी वजह से खो दी। हम बहुत बुरे लोग हैं। हम किसी भी तरह माफी के काबिल नहीं हैं। लेकिन एक बात जो मुझे यहाँ तक खींच लाई वो तुम्हारा ज़र्फ था। तुम्हें इतना ज़र्फ कहाँ से आ गया कि तुम दुश्मन के घर की बेटी से तुमने निकाह कर लिया? तुमने क्यों वक्त आने पर मेरे बाबा, चचा और फुप्पो को जलील नहीं किया? तुमने क्यों इस घर की बेटी से निकाह करके उनकी इज्जत बचा ली? तुम इतने आला ज़र्फ कैसे हो सकते हो? और वो बेवकूफ़ सी लड़की अब के कैसी दिल दहला देने वाली बातें कर रही थी। माज ने आंखें लम्हे भर को मूंद कर चेहरा दूसरी जानिब फेरा। उसे अभी इस जवाब देने का मतलब था उसे हर्ट करना, और वो इस लड़की को हर्ट नहीं करना चाहता था। वो उसे हर्ट करने का सोचकर ही हर्ट होने लगा था। उफ, ये क्या हो रहा था उसके साथ? तुम मुझ पर अपना गुस्सा उतार लो मास। मैं मुजरिम की बेटी हूँ। मैं इस घर की बेटी हूँ जिस घर ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। तुम मुझे उस रिश्ते में बांध कर अपना बदला ले लो, लेकिन खुद को यूं अजियत मत दो। इतना खामोश मत रहो कि अंदर पलता ये नासूर तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाए। तुम्हें खुश रहने का हक है। तुम्हें कुरान पढ़ने का हक है। अपने आप को यूं ज़ाया मत करो। उसने दोनों हाथ चेहरे पर फेरे, जैसे अपने चेहरे पर फैले तकलीफ दे से तासुर को जायल करना चाहा। राबेल दिल गिरफ्ता सी उसे ही देख रही थी। काश कि वो उसका कुरान उसे वापस लौटा सकती। काश कि वो उसके लिए कुछ कर सकती। उसने लम्हे भर को सर उठाया, उसकी कथई आंखों के नम से कांच को देखा।
تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اس سب میں۔ اور جب وہ بولا تو آواز بھاری تھی، جیسے اس کی حلق میں وہ بہت کچھ ایک ساتھ اٹکا ہو۔ میں نے قرآن اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ میں قابل نہیں ہوں اس کے۔ میں نے اتنی سیاہی میں وقت گزار لیا ہے کہ میرا دل اب کہ اس کی جانب سے سخت ہو چکا ہے، مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ رابیل اسے چند لمحے یوں ہی دیکھتی رہی تھی، اور پھر جب اس کے لب ہلے تو ان سے وہ مدھر لفظ بہنے لگے، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے۔ اور اس کی اگلی بات پر اس نے بے یقینی سے سر اٹھایا تھا۔ وہ اس کی ساکت پتلیوں کو اپنی پتلیوں کی قید میں لیے زیر لب بہت مدھم آواز سے پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد ماس کا چہرہ یکدم سفید ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی پڑھتی رہی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا لیکن وہ اسے نہیں روک سکا۔ عرصے بعد کسی نے اس پر قرآن پڑھا تھا، تو وہ ہیں پتھروں کی مانند یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ وہ سائیں سائیں وجود لیے اسے دیکھے گیا۔ اس کی ساکت پتلیوں کے آس پاس اب کے سرخ ڈورے چمکنے لگے تھے۔ باہر برستے کوہر سے بے نیاز وہ دونوں اس کچن میں جم کر ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس کے سیاہ کہف میں یکدم بہت سا نور پگھل کر گرا، اور تحقیق کچھ پتھر البتہ وہ ہیں کہ پھوٹتی ہیں ان سے نہریں۔ رابیل کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اس کا اپنا تاریک سا کہف بھی ان آیات کے نور سے جگمگانے لگا۔ اور بلا شبہ کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے ان میں سے پانی۔ اور معاذ کے ہاتھ بے دم سے ہو کر اس کے پہلوؤں پر گرے تھے۔ وہ بے بسی سے اس کی مدھر آواز کو سنے گیا، وہ جو کہتا تھا کہ ساری زندگی قرآن کو ہاتھ تک نہ لگا سکے گا۔ آج رابیل نے ایک ہی آیت میں اس کی ساری تعویلیں اکھاڑ کر پھینک دی تھی۔ کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ اس کی آواز آیت کا یہ حصہ پڑھتے ہوئے کانپی تھی، یوں لگتا تھا گویا قرآن اس کے دل پر اتر رہا ہو۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ اسے آج سمجھ آیا کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اس کے خوف سے کیوں دب جاتا۔ اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ بقرہ۔ چند پل ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اگلا کوئی بھی جملہ بول سکتا۔ معاذ حالی حالی سا اسے دیکھتا رہا۔ اس ایک آیت میں اس نے معاذ کی پچھلی زندگی کھول کر رکھ دی تھی۔ اس ایک آیت نے اس کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ بس ایک آیت نے اس کے کہف کو روشن کر دیا تھا، اور ایک وہ تھا جو عرصے سے خود کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اللہ کے قرآن کی بس ایک آیت نے اس کی زندگی بھر کے دھوکے کو دھول بنا کر اڑا دیا، اسے گھٹنوں کے بل گرا دیا تھا۔ کیسے اسلام کے سب سے بڑے دشمن اسے سن کر سجدے میں چلے جایا کرتے تھے۔ وہ کلام ہی ایسا تھا، عاجز کر دینے والا، مبہوت کر دینے والا۔ رابیل نے سر جھکا رکھا تھا، پھر چہرہ اٹھایا تو اس کی نم سی آنکھیں سامنے آئیں۔ جانتے ہو معاذ، اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ بنی اسرائیل اللہ کی بہت پسندیدہ قوم تھی۔ اللہ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر ان پر آسمان سے من و سلوہ اتارا، انہیں دنیا کی نعمتوں سے نوازا، انہیں اپنا کلام اور اپنا پیغمبر دیا، انہیں وہ سب دیا جس کی انسانیت کو آج حد سے زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن جانتے ہو انہوں نے اس سب کے جواب میں کیا کیا؟ وہ خاموش رہا، اس میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے ناشکری کی معاذ، انہوں نے ہر اس نعمت کے جواب میں الٹا عمل کیا۔ شکر گزاری کے بجائے کفران نعمت اختیار کیا، سر تسلیم حمد کرنے کے بجائے گردنیں اکڑائیں، احکامات کو جیسے ہیں ویسے لینے کے بجائے ان میں طرح طرح کے جھول پیدا کرنے کی کوششیں کی۔ سب سے بڑی بات، موسیٰ علیہ السلام کو ہر آن اذیت سے دوچار کیا، اور جب وہ یہ کرتے رہے، جب وہ اپنے اعمال کی سیاہی میں ڈوب گئے، جب ان کے دل گناہ کرتے کرتے سخت ہو گئے، تب اللہ نے فرمایا کہ ان سب اعمال کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، یا پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ استغفر اللہ۔ وہ ذرا ٹھہری، انگلیوں سے آنکھیں رڑی، ناک گلابی ہو کر دہک رہی تھی، سانسیں ناہموار تھی، لیکن پھر بھی وہ بول رہی تھی، وہ بولنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے قرآن کے۔ وہ اس قرآن سے اس کا تاریک کہف روشن کرنا چاہتی تھی۔ ان کے دل پتھروں کی مانند سخت ہو گئے معاذ، پتھر جو لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ فولاد ہو یا سیسا، جب اسے آگ میں پگھلایا جاتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے، وہ اپنی ہی حیت تبدیل کر لیتا ہے۔ لیکن پتھر اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ پتھر آگ سے نہیں پگھل سکتے معاذ۔ پتھر کسی بھی صورت اپنی اسٹیٹ چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے، جیسے تم اپنی اس سختی کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو، بالکل اسی طرح وہ بھی راضی نہیں تھے۔ حالانکہ اتنی نشانیوں، اتنے معجزات اور اتنی عظیم نعمتوں کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دلوں کی سختی اختیار کرتے۔ تمہیں بھی تو اللہ نے یہ قرآن دیا معاذ، یہ قرآن جو اس دنیا اور اس دنیا کی ہر شے سے زیادہ بہترین ہے۔ تمہارے قلب کو اللہ نے اس کی ایک ایک آیت حفظ کرنے کا اعزاز عطا فرمایا، لیکن تم نے اس نعمت کے بعد بھی دل کی سختی ہی اختیار کی۔
وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ دل کے کہیں بہت اندر تک تکلیف ہوئی تھی۔ اس کا پتھر سا دل لمحے بھر کو اس آگاہی پر کانپا تھا۔ لیکن رابیل، وہ اس پر ترس کھائے بغیر بولتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ معاذ تکلیف سے دو چار ہو۔ اس نے یہ آیت اس پر پڑھی ہی اس لیے تھی کہ تاکہ اس کا پتھر سا دل زخمی ہو۔ وہ اس دل کو پگھلا نہیں سکتی تھی، لیکن وہ اس دل کو توڑ ضرور سکتی تھی۔ اور جانتے ہو، پتھروں کو پگھلایا نہیں جا سکتا، انہیں صرف توڑا جا سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب کے ضبط کے باعث گہری سرخی ابھرنے لگی تھی، لیکن وہ پھر بھی خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ دل ٹوٹ رہا تھا اور اس دل سے اب کے پانی رسنے لگا تھا۔ انسان کے اعمال اس کا دل سخت کر دیتے ہیں معاذ، یہ سچ ہے، اتنا سخت کر دیتے ہیں گویا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ لیکن پھر پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے بہت سا پانی بہہ نکلتا ہے۔ معاذ کی آنکھیں گلابی ہونے لگیں، گردن کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بہت عرصے بعد حبیبہ کی نرم سی آواز اس کے آس پاس تحلیل ہونے لگی تھی۔ یہاں پر جو پتھروں کا ذکر ہے نا، وہ دراصل دل کی اقسام کا ذکر ہے۔ کچھ دل تو ایسے ہوتے ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، جیسے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا دل اب ہو چکا ہے۔ لیکن پھر دلوں میں سے کچھ دل وہ بھی ہوتے ہیں جو آزمائش کی ذرا سی لرزش پر ٹوٹتے ہیں اور ان سے نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ پانی، بہت سارا پانی، ایسے دل نرم ہوتے ہیں، بس انہیں آزمائش کی بھٹی میں تپا کر کندن بنانا پڑتا ہے۔ لیکن پھر کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے ہلکا ہلکا باریک باریک سا پانی نکلتا ہے۔ مطلب اس دل میں خیر ہوتی ہے، لیکن اس کے سخت سے خول کے باعث وہ خیر باہر کو نہیں نکل رہی ہوتی۔ پھر اللہ اس دل کو توڑتے ہیں، لوگوں کی محبت سے، کڑی آزمائشوں سے، کسی محبوب چیز سے آزما کر، کسی نہ کسی حادثے سے جب ہم پوری طرح سے ہل جاتے ہیں، تب دل ٹوٹتا ہے اور اس میں سے خیر بہنے لگتی ہے۔ لیکن تیسرا اور آخری دل، وہ لمحے بھر کو ٹھہری۔ معاذ خوفزدہ ہوا تھا، وہ کیوں خاموش ہوئی؟ کاش کہ وہ کبھی خاموش نہ ہو۔ اس کے بے چین دل کو ان لفظوں سے سکون مل رہا تھا، بے حد سکون۔ یہ وہ دل ہوتا ہے معاذ کہ جس میں اسلام تو ہوتا ہے مگر ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان اور اسلام دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کچھ لوگ اسلام لے آتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے زبان سے اقرار، لیکن اعضائے جوارح کا ان احکامات پر عمل نہ کرنا، اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل کے پختہ ارادے کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا اور پھر اس کی خوشنودی کے کام بجا لانا۔ یہ تیسرا دل خیر سے حالی ضرور ہوتا ہے، لیکن مایوس نہیں ہوتا۔ یہ غافل دل ہوتا ہے، اسے بار بار قرآن کی بات سنانی پڑتی ہے، اسے بار بار انظار سے بیدار کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ اللہ کا حکم سنتا ہے تو اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی۔ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے، وہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ چند پل کے لیے پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ رابل گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ جانتے ہو تمہیں یہ آیت کیوں سنائی میں نے؟ وہ اس لیے معاذ کہ تم کہیں اندر اللہ سے خفا ہو، تم کہیں اندر اپنے قرآن سے خفا ہو، ناراض ہو۔ تم نے بہت دعائیں کی، لیکن تمہاری دعاؤں کو جواب نہیں دیا گیا، تو تم خول میں سمٹ گئے۔ تمہارے دل میں خیر تھی، لیکن تم نے سیاہ اعمال سے اس خیر کا راستہ روک دیا۔ تم نے بنی اسرائیل کی روش اختیار کی معاذ۔ میں نہیں جانتی کہ ان تین دلوں میں سے تمہارا دل کون سا ہے۔ ہر انسان اس بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ وہ دل کی کس قسم میں آتا ہے، لیکن ایک بات میں ضرور جانتی ہوں، اس آیت کی ایک بات جو مجھے ہمیشہ رلا دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی اسٹیٹ میں ہو، آپ جس بھی آزمائش میں ہو، آپ جس بھی تکلیف سے ٹوٹ رہے ہو، آپ جس بھی سیاہی میں دھنسے ہوئے ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ آپ کی کسی بھی اسٹیٹ سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا تھا، اللہ انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ ہم ہوتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے دوری ہم پیدا کرتے ہیں، اور اس دوری کو ختم بھی ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ہمیں خود توڑنا ہوتا ہے تاکہ یہ قرآن ہمارے دل میں داخل ہو سکے، یہ اندر اتر کر ہمارے دلوں میں موجود خیر کو باہر نکال سکے۔ معاذ نے گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی کثافت کو باہر نکالا تھا۔ وہ اسے کوئی جواب دینا چاہتا تھا، اپنے اس عمل کی کوئی جسٹیفیکیشن اس کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس نے تو اپنی طرف سے کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ اس نے تو بات شروع ہی اس کلام سے کی تھی کہ جس کی مثال عرب و عجم میں کہیں نہ ملتی تھی۔ وہ اس کلام کے جواب میں بھلا کیا جواب دے سکتا تھا؟ رابیل ہچکچا کر تھوڑا سا آگے ہوئی، ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھائے، اور اگلے ہی لمحے پتہ نہیں کیسے لیکن وہ اسے گلے لگا چکی تھی۔ وہ جو گردن جھکائے بیٹھا تھا ساکت رہ گیا، سانس تک رک گیا تھا، لیکن دوسری جانب رابیل اب کے ہولے ہولے اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی۔ وہاں کوئی رومانوی سی گھبراہٹ نہیں تھی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس سے رابیل آکورڈ ہو جاتی۔ وہاں صرف اپنائیت تھی، تکلیف تھی، اور شاید کہیں اندر محبت بھی پنپ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم بہت زخمی ہو، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے کبھی کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم اپنی تکلیف کبھی لوگوں سے بیان نہیں کرو گے، لیکن جب تک میں اس رشتے میں ہوں تو میں تسلی کرنا چاہتی ہوں۔
जो तुमसे हमने छीन लिया वो तुम्हें वापस लौटाना चाहती हूँ। उसके हाथ अब तक पहलुओं पर थे। उसने हाथ उठाकर उसे खुद से नहीं लगाया। अगले ही लम्हे राबेल उससे अलग हुई। वो उसे ही देख रहा था। कुछ बोलो भी। उसकी खामोशी पर उसने इसरार किया तो वो थकन ज़दा सा मुस्कुरा दिया। तुमने सारी बातें कर ली। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। और उसके इस जुमले पर पहली बार राबेल के गुलाबी रुखसार मजीद गुलाबी हुई। उसे बड़ी बहादुरी से गले तो लगा लिया था, लेकिन अब उसके सामने यूं बैठना मुहाल होने लगा था। तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से तसल्ली दी है मैंने। कोई गलत मतलब मत निकालना इस बारे में। ये एक तरह की वार्निंग थी जिस पर वो गर्दन झुकाकर एक बार फिर से हंसा था। वो उसकी इस हंसी पर नर्वस होने लगी। माज, ऐसे मत हंसो। पागल हो तुम बिल्कुल, नफी में सर हिलाकर कहा था उसने। वो उजरत में उठी। उसके सामने अब वो नहीं बैठ सकती थी। कहाँ जा रही हो? और अब उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उसके सामने से चली जाए। वो लम्हे भर को रुकी। घर जा रही हूँ, और तुम भी घर जाओ। बाहर बहुत ठंड है। हीरो बनने की कोशिश हरगिज ना करना। राबेल, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। टाटा किया और जल्दी से बाहर निकली। वो मुस्कुराकर उसकी उजलत को देखता रहा। जानता था कि वो नर्वस हो रही है और आज एक और इंकशाफ भी हुआ था उस पर। वो बेवकूफ़ नहीं थी। वो बस ऑकवर्ड होने पर उल्टी सीधी बातें कर जाया करती थी। उसे पता नहीं था कि वो कितनी अक्लमंद है। चलो, कभी ना कभी तो वो उसे ये बता ही देगा। दूसरी जानिब वो जल्दी से गाड़ी में आकर बैठी। दोनों रुखसारों पर हाथ रखे, आंखें मीची। उफ 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 उफ। उससे बचकर तो निकल आई थी, लेकिन अब उसकी सुरमई आंखों मुस्कुराती आंखों से कैसे बच पाएगी? या अल्लाह! उसने एक बार फिर से अपने गुलाबी रुखसार छुपाए थे। अंदर वो अब तक उसकी उजलत पर उदासी से मुस्कुरा रहा था। वो घर वापस आई तो ईशा की अजानें थम चुकी थीं। लाउंज में ही उसे सब घर वाले विराजमान नजर आ गए थे। वो सलाम करती पास चली आई। सबसे पहले आबिदीन ने उसकी जानिब देखा था और फिर सबकी निगाहें उस पर उठी। कहाँ गई थी तुम? वो टिपिकल नहीं थे, ना ही उसे कहीं आने जाने पर पाबंदी थी, लेकिन वो ऐसे कभी घर से निकलती नहीं थी, इसलिए उनकी जानिब से ऐसा इस्तफसार यकीनी था। ताया से मिलने गई थी, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। लेकिन उसकी बात पर रिदा के अलावा सब सीधे हो बैठे थे। भाई साहब से? लेकिन क्यों? आबिद के माथे पर बेसाख्ता ही बहुत से बल उभरे तो उसे थूक निकला। वैसे ही, क्या मैं उनसे मिलने नहीं जा सकती बाबा? उसने उल्टा उन्हीं से सवाल कर डाला था, जिस पर वो चंद लम्हों के लिए खामोश से हो गए। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। लेकिन क्यों? वो एक बार फिर से खामोश हुए तो उसे उनकी खामोशी बहुत नागवार गुजरी। मैं उनसे मिलने क्यों नहीं जा सकती बाबा? अब तो मेरे उनके साथ 2 रिश्ते जुड़ चुके हैं। फिर अब उनसे मिलने में क्या कबाहत है? आबिद की आंखें लम्हे भर को सर्द हुईं। मैं चाहता हूँ कि तुम माँ से तलाक ले लो। और उसने तो ये बात पहले भी सुन रखी थी, लेकिन जितनी तकलीफ उसे इस वक्त हुई थी पहले कभी ना हुई। वो कैसे उसे तलाक का कह सकते थे? आखिर बाबा को हो क्या गया था? रामीन सर झुकाए बैठी थीं, और जबकि शिजा और रिदा दोनों उसी की तरह बेयकीनी से आबिद को तक रही थीं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मुझे बाबा? वो हर्ट हुई थी। उसकी आंखें सब अयां कर रही थीं। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है बेटा। वो माज, निकाह तो कर लिया, लेकिन पलट कर तुम्हें पूछता नहीं, ना ही वापिस आकर। उसने अपनी शक्ल दिखाई। भाई साहब ने अलग अपनी पुश्त हमारी जानिब कर ली है। ऐसे में मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही है ना तुम्हारे बारे में। और आपने मेरे लिए एक बार फिर से अरहम को सोच लिया। उसकी आवाज़ जिंदगी में पहली बार सर्द हुई थी। वो इंसान जिसने उससे भरे पंडाल में रुसवा किया था, उस इंसान को बाबा ने एक बार फिर से उसके लिए मुंतखब कर लिया था। बेटा, वो ना सिर्फ माँ से बेहतर है, बल्कि माली हैसियत में भी वो उससे बहुत अच्छा है। उसके बाप का अपना बिजनेस है, जिसका वो इकलौता वारिस होने वाला है। ऐसे में तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा बेहतरीन इंतखाब मेरी नज़र में और कोई नहीं। दिल पर लगी चोटें बाबा के लफ्जों से और गहरी होने लगी थीं। सिर्फ माली हैसियत की खातिर आप मेरा निकाह खत्म करना चाहते हैं बाबा? आबिद की उभरती खंखार उस पर वाजे कर रही थी कि वो इस मौजू से गैर आरामदेह हो रहे थे, लेकिन वो भी क्या करती। जब तक उनसे दो टोक बात नहीं की जाती, उन्हें बात समझ नहीं आनी थी। ना सिर्फ माली हैसियत, बल्कि उसके इखलाक को भी देखो तुम। कितनी इज्जत करता है सबकी, कितने तरीके से पेश आता है वो हर एक के साथ। मिलता है तो मुस्कुरा कर मिलता है, ऐसे कि अगले बंदे का दिल ही खुश हो जाए। लेकिन मास, उनके तलखी से सर झटकने पर राबेल के अंदर जाने क्या क्या चुभा था। उसे बाबा का अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस वक्त। कभी मुस्कुराते हुए देखा है तुमने उसे? जब देखो एक ही तासुर सजाए रखता है चेहरे पर। मिलता यूं है जैसे किसी ने गन पॉइंट पर सलाम करवाया हो। ऐसे होते हैं लड़के, इस तरह निभाते हैं रिश्ते, और ऐसे इज्जत करते हैं अपने बड़ों की। तुम मानो या ना मानो, लेकिन अरहम हर लिहाज से माँ से बेहतर है। और राबेल ने उनके ऐसे मवाजने पर लम्हे भर को अपनी कनपटियां जलती हुई महसूस की थीं।
माज और अरहम का मुकाबला आखिर था ही क्या? अरहम ने 13 साल की उम्र में अपनी माँ को अपने हाथों से कब्र में नहीं दफनाया था बाबा। ना ही उसने अपना बचपन सड़कों पर गुजारा और ना ही उस पर ऐसी कोई तलखी कभी भी जिंदगी में बारिद हुई। आप उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो दोनों एक तरह से बड़े नहीं हुए बाबा। एक ने जिंदगी गहरे जंगल में गुजारी है तो दूसरे ने ये जिंदगी किसी शाही शहजादे की मानित। आपको क्या लगता है कि आप उनका मुवाजना यूं करके अपने अमल को जस्टिफाई कर सकते हैं? उनकी जानिब से ऐसा वार बिल्कुल गैर मुतवक्के था। रामीन और आबिद तो चौंके सो चौंके। शिजा ने भी उसे लम्हे भर को हैरत से देखा था, लेकिन राबी को अब किसी की भी परवाह नहीं थी। जो हो चुका था वो हो चुका था, लेकिन अब वो उन्हें एक बार फिर से तारीख नहीं दोहराने दे सकती थी, हरगिज भी नहीं। तो तुम अब इस कल के लड़के के लिए अपने बाप से बहस कर रही हो? आप मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर रहे हैं बाबा। जब आप इस रिश्ते के लिए दिल से राजी ही नहीं थे तो उस भरे मजमे में आपने हामी क्यों भरी? आपके साथ तो किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी, तो मेरे रिश्ते के लिए यूं उजलत में हाँ कर दी। और अब जबकि मेरा निकाह हो चुका है तो आप इतने आराम से इसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। मेरे लिए ये सब नॉर्मल नहीं है बाबा। आप प्लीज कुछ तो ख्याल करें। और उसने अब के फैसला कर लिया था कि वो इस रिश्ते को बचाने के लिए जिस भी हद तक जाना चाहेगी जाएगी, क्योंकि वो इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती थी। वो मास को नहीं छोड़ना चाहती थी, और इस अरहम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें एबनॉर्मल क्या है, मुझे सिर्फ ये बताओ। आबिद बजाय ठंडे दिमाग से सोचने के उल्टा तैश से आगे को होकर बैठे बैठे थे। रामीन ने पहलू बदला। साथ राबेल को मजीद बहस करने से भी रोका, लेकिन वो उनकी जानिब मुतवज्जे नहीं थी। बाबा, मेरा निकाह हुआ है। निकाह एक बहुत मजबूत और गहरा रिश्ता होता है। ये मंगनी के दो बोल की तरह नहीं होता कि दो बोल से टूट जाए। ये अल्लाह का बनाया हुआ ताल्लुक है और आप इसे ऐसे बिलावजह नहीं तोड़ सकते। आबिद की आंखें आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होने लगी थीं। उनकी हसासी राबी कब इतनी मजबूत हुई उन्हें अंदाजा ना हो सका, लेकिन अब उन्हें अच्छे से इस बात का अंदाजा हो रहा था। मेरे पास वजह है इस रिश्ते को तोड़ने की। माहौल में हर गुजरते लम्हे के साथ तनाव बढ़ता ही जा रहा था। राबेल को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। आपकी हर वजह इस रिश्ते से छोटी है बाबा। अच्छा, वो मुस्कुराकर पीछे को हो बैठे थे। फिर सर झटका। इतना ही यकीन है तुम्हें इस रिश्ते पर तो लेकर आओ मास को मेरे सामने। वो आए और हम सब के सामने इकरार करे कि वो इस रिश्ते को निभाना चाहता है, तो हम तुम्हें उसके निकाह में रहने पर कभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर राबेल, वो आगे को हुए, तंबीही निगाहों से उसे देखा। उसका दिल लम्हे भर को रुका था। अगर वो यहाँ आकर दो लफ्जों की साफ बात ना करके गया तो मैं तुम्हें हरगिज भी नहीं देखूंगा। मैं ये रिश्ता खत्म करवा दूंगा। और एक बात और। वो उठ खड़े हुए तो रामीन भी मिकानकी से अंदाज में उनके साथ ही उठी थी। राबेल ने गीली गीली आंखों से उन्हें देखा था। मैंने उस वक्त तुम्हारे रिश्ते के लिए हामी सिर्फ इसलिए भरी थी क्योंकि मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। जितनी बातें तुम्हारे इस दुपट्टे और मदरसे की वजह से मैंने सुननी थी, मैं सुन चुका। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं थी किसी की बकवास सुनने की, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि सोतेला खून हमेशा सोतेला ही रहेगा। देखो, दिखा दिया ना उन्होंने अपना आप। ये कैसे एक बार भी पलट कर खबर ना ली तुम्हारी। इस वक्त निकाह भी सिर्फ इसलिए किया था ताकि खानदान भर में नाम कमा सकें जो वो कमा चुके। लेकिन अब मैं उन्हें अपनी और बेइज्जती करने नहीं दे सकता, समझ लो इस बात को। वो इतनी सर्द मोहरी से बोल रहे थे कि बेसाख्ता ही उसकी आंखों से आंसू टूटे। आखिर और क्या क्या सहना रह गया था। बाबा का एक एक लफ्ज उसके दिल में गड़ गया था, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। सर झटक कर आगे बढ़े तो रामीन भी उनके पीछे गई। उसने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। हाथ लरज रहे थे और दिल सुकड़ रहा था। शिजा ने गहरा सांस लिया और रिदा, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पुश्त से सहला रही थी। रावी को लगा था कि अब सब ठीक हो गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। उसका निकाह माज से हो गया है तो अब किसी में हिम्मत नहीं होगी उसे मजीद परेशान करने की। लेकिन अब एक बार फिर से बाबा उसके लिए आजमाइश का गड्ढा खोद रहे थे। वो क्या करे या अल्लाह, वो कहाँ चले जाए। सब अपने अपने कमरों की जानिब हो लिए तो अब के वो लाउंज में तन्हा रह गई। बेसाख्ता ही उसे अपने कंधों पर थकन महसूस हुई थी। उसने आहिस्ता से लाउंज से उठकर कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाए। टिक टिक करती घड़ी रात के 10 बजा रही थी। उसने बुर्का उतारा और शॉवर लेने चली गई। रूह पर जमी कसाफत ऐसे ही छट सकती थी। नीम शॉवर लेने के बाद उसने बाल खुश्क किए। सिंगार आईने में अक्स देखते हुए यकदम सुरमई आंखें उसके सामने चमकी थीं। कितनी तकलीफ थी उन आंखों में, क्या कुछ सह लिया था उन आंखों ने। फिर भी रोना भूल गई थी वो आंखें। तौलिए से बालों को खुश्क करते उसके हाथ लम्हे भर को सुस्त हुए थे। वो इन आंखों में उतरने लगी थी, या शायद वो आंखें उसमें उतरने लगी थीं। लोग उसका मवाजना अरहम से कर रहे थे। लोग ऐसा कैसे कर सकते थे? कितने बेरहम होते हैं ये लोग। लेकिन वो लड़ेगी, वो उसके लिए लड़ेगी। वो अपने लिए लड़ रही थी तो उसके लिए भी लड़ सकती थी। बालों को उसने पीछे फेंका तो वो पुश्त पर लहराए। कंधों से थोड़े नीचे आते बालों से पानी मोतियों की सूरत टपक रहा था। उसने एक बार फिर से अपना अक्स सिंगार आईने में देखा था। रुखसार यकदम गुलाबी हुए। कुछ याद आ गया था उसे। मास का गर्दन झुकाकर हंसना। उफ, उसने मुस्कुराकर आंखें मीची।
اس کی یاد اسی ہار سی دنیا میں شبنم کے نرم قطروں کی مانند تھی۔ اس نے خود سے بھی اس سمے نگاہیں چرائی تھیں۔ دوسری جانب ماز اپنے کمرے میں اندھیرا کیے گلاس ڈور کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ گلاس ڈور سے باہر چاندنی سی پگھل رہی تھی۔ چاندنی کا کچھ حصہ اس کے کمرے میں گر کر اس کی تاریکی کو سلب کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ خوبصورت سی سرمئی آنکھیں خاموشی سے چھت کو تک رہی تھی اور ان نگاہوں کے پار وہ حبیبہ کا چہرہ تک رہا تھا۔ ان کا وہ پاکیزہ سا بابرکت چہرہ جو کبھی اس کی یادوں سے اوجھل نہ ہوا تھا، آج پوری آب و تاب سے اس کے آگے جگمگا رہا تھا۔ یکدم ہی اس کی نگاہوں کے سامنے ایک اور پاکیزہ سا چہرہ گھوما۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی حرکتیں یاد کر کے مسکرایا تھا۔ کتنی نرم تھی وہ، ساری دنیا دل توڑنا جانتی تھی، لیکن ایک وہ تھی کہ اسے دل جوڑنے آتے تھے۔ لوگ اسے کم عقل کہتے تھے، بے وقوف اور کسی حد تک بیک ورڈ بھی، لیکن وہ ان سب کے ساتھ ہی تو خوبصورت تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو ایسی باتیں کرنی آتی تھی جو کسی بڑی اور میچور لڑکی سے بھی متوقع نہیں تھیں۔ جانے وہ کیسے مل گئی اسے، کیسے مل سکتی تھی وہ اسے تسلی دینے کے لیے اپنی جھجک کی پرواہ کیے بغیر اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، اسے تھپکا تھا۔ اسے کبھی بھی کسی کو اپنے اتنے نزدیک نہیں آنے دیا تھا، لیکن وہ اسے چاہ کر بھی روک نہیں پایا تھا۔ وہ اس کی قربت سے گھبرایا نہیں تھا، کیونکہ وہ غیر آرام دہ نہیں کیا کرتی تھی۔ وہ خود آکورڈ ہو جاتی تھی، لیکن آگے والے کو آخری حد تک سکون پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ کیا تھی یہ رابیل؟ اور رابیل نے اس وقت عشاء کے فرائض سے سلام پھیرا تھا۔ زیر لب تسبیحات پڑھتے ہوئے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے، پھر انہی ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا۔ شم سے وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میں چاہتی ہوں کہ آپ معاذ کو اس کا قرآن لوٹا دیں۔ پلیز اللہ، اسے اس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اور معاذ شراوی آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، واش روم کی جانب بڑھا۔ واپس پلٹا تو آستینے کونیوں تک لپٹی ہوئی تھیں۔ بال ہلکے سے گیلے ہو کر ماتھے پر گر رہے تھے۔ وضو کا پانی ٹھوڑی سے ٹپک رہا تھا۔ کسی کی دعاؤں کا اثر تھا جو اس پر ہو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر جائے نماز بچھائی اور پھر نیت باندھ لی۔ رابیل اب کے سکون سے رکوع میں جھکی ہوئی تھی۔ مدھم سی آواز میں تسبیحات پڑھتے ہوئے اس کا سارا بوجھ اتر رہا تھا۔ وہ اللہ سے بات کر رہی تھی، وہ اللہ سے اپنے غم کی فریاد کرنے آئی تھی۔ بھلا اس کا دل کیسے نہ ہلکا ہوتا۔ دوسری جانب وہ بھی اب کے اسی سکون کے ساتھ رکوع میں جھکا ہوا تھا۔ اندر کا سپاٹ پن اب تک ویسا ہی تھا، لیکن اب کے اس کھول میں دراڑیں بخوبی محسوس کی جا سکتی تھیں۔ رابیل نے پرسکون سی نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو ہر جانب سلامتی کی خوشبو سی بکھر گئی۔ اس کا کہف امن و سکون کا گہوارہ لگتا تھا۔ دعا مانگ کر جائے نماز طے کرتی اٹھی اور چہرے کے گرد لپٹے دوپٹے کی تہیں کھولیں۔ کتھئی سے بال اب کے سوکھ کر کندھوں پر پھسل رہے تھے۔ اس نے دوپٹہ اسٹڈی ٹیبل کے آگے رکھی کرسی پر ڈالا اور کرسی کھینچتی بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بہت سے اسائنمنٹس بنانے تھے اور مدرسہ کے کچھ ادھورے کام بھی کرنے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد بابا کی باتوں سے جو دل پریشان ہوا تھا وہ یکدم شانت سا ہو گیا۔ سکون ہی سکون پھیل گیا ہر سو۔ اس نے سیاہ روشنائی والا قلم کھولا اور پھر کورے کاغذ پر لکھنے لگی۔ بال جب پھسل کر اسے تنگ کرنے لگے تو اس نے آگے بڑھ کر کلپ اٹھایا اور بالوں کو ہاف باندھ لیا۔ اب کہ وہ گردن ترچھی کیے اپنا اسائنمنٹ بنانے میں پوری طرح سے مصروف دکھتی تھی۔ معاذ نے بھی اپنی نماز سے سلام پھیرا اور پھر ہمیشہ کی طرح دعا کیے بغیر اٹھ گیا۔ الماری کے اوپر گرد سے اٹی وہ کتاب اب بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پل کو رک کر اس کتاب کی جانب دیکھا۔ بہت کچھ ایک ساتھ نگاہوں کے سامنے گھوما، لیکن ابھی اتنی جلدی وہ آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی ہمت کو خود میں نہیں پاتا تھا۔ سو گہرا سانس لے کر وہیں گلاس ڈور کے پاس جا کر دوبارہ سے لیٹ گیا، ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیے، لیکن اب کہ اس کے اندر کی بے چینی مفقود تھی۔ اب کہ اس کے کہف میں بھی صرف سکینت تھی جو محسوس کی جا سکتی تھی، اور یہ سکینت کس کی برکت سے تھی اس کا اندازہ اسے بخوبی تھا۔